Good evening, everyone, and welcome to the concert of the Free Library Festival. I hope that everyone is staying sane in these lockdown times. मेरा lockdown अच्छा चल रहा है. I realized कि सब fitness के पीछे पागल हैं. So I would like to share with you कि I also lost 12 kgs of hair. And I realized the worst part of losing 15 kgs of hair was कि I only had to sweep it up. I got confused. I was like, मेरा घर है या तिरुपति? I hope कि आप सब अपने आप को protect कर रहे हो, that you're wearing your masks, that you're washing your hands. By the way, my mother gets very irritated when I talk about safety from COVID. She says, Arey, listen, no, Aditi, if you talk too much about it, then it will come to you. I'm like, theek hai, then shall we talk about money? Shayad if we talk about it, it'll come to us. But this has been a tough year for everyone. And that's why we're doing this concert virtually. In a year that the world hit the pause button and pivoted. What happened to libraries? What you're watching right now is a celebration of months of fundraising and pivoting done by the Community Library Project, where we have auctions, workshops, and now a show of support by some artists who have redefined the art of storytelling in India, whether it's through music or spoken word. मेरी आशा है कि आप इस साल का performance दिल खोल के enjoy करेंगे. And if you do, and you're watching, I implore you to laugh and clap and give freely of your emotions, even if you're sitting there alone in front of your laptop or in front of your phone. I hope I'm not the only one who's going to be doing it. My poor dog does not deserve to be scared alone. You know something? My dad, it made me realize how much stories define our lives. Because when I was younger, I grew up, of course, on a healthy dose of Enid Blyton and Famous Five and all these books. And I remember writing stories for my dad. And all my stories would begin with, and then the sun came out today, and I went out to play with my imaginary friends, Jeremy and Pippa.
And every time my father would read this, he would be like, "Ek minute, beta. This is India. The sun is always out. And please, beta, we don't have imaginary friends in India because we have real friends. We already have 1.3 billion people. Please don't go around imagining new people." But it made me realize the power of the stories we hear and how they affect the stories we tell. Because at the end of the day, what are we except these stories? Everything we know about this world, our history, our geography, our politics, is a story that was told to us by people that came before us and people who make more money than us. Humanity is a story. And every time we donate or save a library, we are putting our 2 words, our 2 cents, our 2 rupees, and our 2 euros to the furtherment of humanity. लेकिन हिस्ट्री में और आज के दौर में क्या फर्क है? It's the fact that today our world has more people than ever being able to tell stories. Stories that are our definition, our world, and our future. So today, in every performance that you see, enjoy, and relate, know that it is your story. And know that every rupee you donate is a story reaching the ears and the minds of the future. And what better way to kick off the show than with our homegrown rappers from the Khirki branch of the Community Library Project, which has been a germination ground for this duo. The first act for tonight is the rap duo of Famous Hona Hai featuring Kranti K and Dean Swag. Now, what I love about them is that no one can ever have a doubt कि यार इनको चाहिए क्या? Because भाई नाम में ही है famous होना है, तो कर दो famous and give a huge round of applause for Famous Hona Hai. हेलो, मेरा नाम है क्रांति के, मेरा नाम है डीन स्वैग और एक डुओ बैंड है जिसका नाम है दस्तक। और हम आज आपके सामने रैप परफॉर्म करने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। और आप ये परफॉर्मेंस अपने घर बैठ के देख सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो शॉर्ट आउट टू टीसीएलपी जिसने ये कॉन्सर्ट करवाया, ये फेस्टिवल में जिसे आप देख सकते हैं। और ये लाइब्रेरी आपको बता दो टीसीएलपी है क्या। टीसीएलपी पूरी लाइब्रेरी है जो सिर्फ फंड और डोनेशन चलती है, तो आप इसमें जुड़कर आप फंड और डोनेशन दे सकते हैं जिससे लाइब्रेरी चलाने में हेल्प मिल सके। तो सारे जुड़िए और हम मिलते हैं आपको कॉन्सर्ट में। भारत की कहानी यानी राजनीति का बोलबाला, उसने सच बोला यहाँ उसको सबने खोल डाला। विकास के नाम पर सिर्फ गरीबी विकास हुआ, कल का आया नेता आज बन गया नोट वाला। सबसे गंदी है बीट वसल ये बीट यहाँ चल रहा खेल बने राजनीति वो बने बड़े दीदी आते सिर्फ कदमों के नीचे। क्यों इस गंदगी में लोगों को ये खींचे पीछे से आते हैं करते हैं सीधा फुल बेडेम बना दिया इन्हें देश का पप्पा। हाँ हमने क्यों करी ये गलती, देश न रख आज किसी की जमती न बनती, किसी की दोस्ती के नाम पे मिलता सिर्फ यहाँ धोखा। बदल दिया देश बदल दिए कानून जैसा लगा वाका धोखा। हाँ रोका है मैंने सिर्फ अपने आप को, करे गुंडागर्दी जैसे देश के बाबू इनके फूटे करम जाओ धुआं, बाप को न मिलेगी माफी बेशक माफी मांग लो तुम कंगालो, कंगाली में जीवन बीतेगी तुम्हारी। हाँ चाहिए आजादी नोट वोटों के बिना न चले तुम्हारी दुनिया। लोगों को बांटते हैं जिद के साथ जेबों को नापते हैं कांपते हैं हम डरते हैं विभिन्न मामा से जो नेता के साथ बने पड़े ओसामा से ना ही नोट वो भी 1000 के देते ये चोट क्यों बीच बाजार। हम भी 1000 जाने वाले हैं बेड़ा अच्छे दिन जो आने वाले हैं, अच्छे दिन आ रहे हम क्यों रो रहे हैं। बदल दिया दिन के चैन की नींद सो रहे हैं, ये चैन की नींद सो रहे हैं। भारत की कहानी यानी राजनीति का बोलबाला, जिसने सच बोला यहाँ उसको सबने खोल डाला। विकास के नाम पर सिर्फ गरीबी विकास हुआ, कल का आया नेता आज बन गया नोट वाला। देखो सुनो सारे बात गुंडा राज ये दंगे फसाद जो बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं उनके कारणों से बनते युद्ध के हालात। क्या बात ना किसी को याद, ये नेता करेंगे देश हित की बात, ऐसा सोचने वाले तुम दूरी रहो, ये तो करने वाले देखो बर्बाद लूटपाट फिर जातिवाद को मुद्दा बनाकर हुआ विवाद। धन के नाम पर लड़ने वाले इंसानों का यहाँ पे नीयत खराब, घोटालेबाजी है खबरें साजी रुकते नहीं ये होते आज भी, खुले जेब में मीडिया कैद में करके चलते हैं ये चौड़ में। रुकने की बारी अब आ गई इनके पीछे रह गए ये विकास के दौड़ में। आज के दौर में बढ़ती महंगाई फिर विश्व यात्रा करती हवाई, एक
एक तरफ है कुआं दूसरी तरफ है खाई, गोरे तो लूट कर चले गए पर खुद लूटोगे तो देश का खुद ही सोच लो अब क्या होगा मेरे भाई। भारत की कहानी यानी राजनीति का बोलबाला, किसने सच बोला यहाँ उसको सबने खोल डाला। विकास के नाम पर सिर्फ गरीबी विकास हुआ, कल का आया नेता आज बन गया नोट वाला। टीवी देख लोग झूठी ये खबरें, जाके देखो खुद वही ये खबरें, मीडिया अखबार देखे हैं सब, आधे तो मोदी के फैन हैं, जबरे गुंडे तो मोरे हैं, सरकार के पैसों पे आते ये बेरोजगार। ये सेकुलर इंडिया तो बस एक बहाना, ये हिंदू राष्ट्र बनाने को तैयार है, बच्चों पे डंडा राजनीति अंडा दे रही है, पूरा सिस्टम घंटा। ये सबसे दुख की तो बात ये है, सब देख के भी शांत क्यों बैठी है जनता। भूले ये जमाना की देश में कितने गुंडे, दो उड़ाता आवाज पड़ रहे उसे डंडे, करना जिन्हें काम वो कर रहे हैं धंधे, जिन्हें बनाया लोगों ने वो लोग तो नहीं डर रहे क्यों, लोगों को बनाते ये मोरा करके ये करते रहे हैं दौरा। फेक न्यूज देख भी नहीं समझते इन जैसों को तो आंखों पे है कोरा 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 क्यों कोरा। किसी के बात पे न आना दुनिया झूलती है, बजने दो बजता तो ढोल भी है। एक राज जो यहाँ पे सदियों से छिपाता, लाइब्रेरी की देखो किताबें खोलती है। किसी के बात पे न आना दुनिया झूलती है, बजने दो बजता तो ढोल भी है। एक राज जो यहाँ पे सदियों से छिपाता, लाइब्रेरी के देखो किताबें खोलती है। शुरुआत है, छोटा दिमाग तो बड़ा मिजाज है, अपना तो इसी मिजाज में पढ़ना है और पढ़ते ही जाना ही जोड़ वाली दुनिया से बड़ा बन के दिखाना है। बड़ा बनने मुकाम भी तो चाहिए, अपने आप को समझने के लिए TCLP वाला नाम भी तो चाहिए। हटाने से कभी कुछ नहीं मिलता, मेहनत करोगे तभी मिलेगी सफलता, अच्छे काम करोगे तभी खुश होगी जनता। ना है लीडरशिप तो कोई गांधी नहीं बनता, हाँ बनते ये लोग नेता पर करते क्राइम में। किताबें बोलती है यही अपना टैग लाइन है, छोटे से ये कमरे किताबों से भरे हैं, है ये निःशुल्क स्वागत सबका कर रहे हैं पब्लिक से तो ये काफी भरा है। टैलेंट की है ना कमी क्योंकि यहाँ पे बहुत कला है, कला तो यहाँ जी सभी के पास है, जो हाथों से लिख दिया वो बन जाता इतिहास है। जो भी मैंने बोला वो रहता सबको याद है, आओ मेरे साथ सब बोले, सभी बोलेंगे किसी के बात पे ना आना दुनिया झोलती है, बजने दो बजता तो ढोल भी है। एक राज जो यहाँ पे सदियों से छिपाता, लाइब्रेरी के देखो किताबें बोलती है। किसी के बात पे ना आना दुनिया झोलती है, बजने दो बजता तो ढोल भी है। एक राज जो यहाँ पे सदियों से छिपाता, लाइब्रेरी के देखो किताबें बोलती है। किताबें बोलती है, 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 किताबें बोलती है ना। A round of applause for your किताबें that are speaking. यार अगर मेरे पीछे ना किताबें बोलने लगी ना तो मेरी साउंड completely off हो जाएगी. तो guys, 1 second for now. But you know in 1947 after independence हमने decide किया था कि भाई India will be a democracy. But even after 72 years, we still have a large number of people who are not included in this idea of democracy because we've always thought कि यार democracy तो parliament और सरकार बनाती है. But the truth is, democracy is in our hands. And the closest example of democracy near you is in your libraries. Because for the people who are not included in this idea of democracy even today, a library is the most democratic space. No one can tell you कि क्या पढ़ना है और क्या सोचना है. It's truly a place where the mind is without fear. And TCLP is a response to this uneven idea of democracy to make it more even. Even lockdown में जब मैं अपने कबड़ के नीचे से बालों का झाड़ू मार रही थी, they managed to make an online library that uses WhatsApp and YouTube, even to someone who has basic smartphone and limited access to the internet. TCLP has even developed a library with books for pleasure rather than schoolwork for the first time, for kids who approach reading सिर्फ काम से ही नहीं लेकिन प्यार से भी. And इंडिया में तो आपको पता है कि कहते हैं ना कि गुस्से से प्यार डर नहीं लगता साहिब, प्यार से लगता है. लेकिन TCLP की लाइब्रेरीज में वो एक ऐसी जगह है जहां पे बुक से और प्यार से दोनों से प्यार है. Our next performance is a Hindi translation of famous author Neil Gaiman's speech, Libraries, and it is performed by a stalwart of Marathi theatre and award-winning actress, Sonali Kulkarni.
Hello, Namaskar, good evening. I am Sonali Kulkarni, and I'm very happy to be with all of you this evening, where we are celebrating books, libraries, and reading. I'm going to read a speech this evening, but before that, let me just tell you a little bit about my connection with books. Um, I'm very attached to books and reading. Wherever I go, wherever I travel, you will definitely find one thing in my bag, and that is some book. Before the television entered our house, friends and books were the only source of entertainment. Both my elder brothers were quite into books. My eldest brother Sandeep used to laugh out loud when he used to read something of Pula Deshpande. Sandesh used to call himself a Maura because he was very fond of Baba Saheb Purandare's books on Shivaji Maharaj. I was fascinated with my brother's world. I used to think that where do they belong to? And I really wanted to get there. And eventually I got to get there. But that was such a value addition, right? When you were a child. Later, in our vicinity, there was a library founded by Raja Mantri, which was called Bhagat Singh Library. And Sandesh and I were part of kids section, and our library number was 101. One of my mama, Vinayak Naik, he was librarian at Dharwad University, Dharwad College, and he has fond memories of meeting G.A. Kulkarni, Girish Karnad, and many such legends. Well, till date, I think gifts are always books. They make such a fantastic gift. I'm getting too senti about myself. Let me just get back to reading. तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको एक भाषण पढ़कर सुनाने वाली हूँ। ये भाषण है नील गेमन का और इसे अनुवादित किया है हिमांशु भगत ने, जो एक TCLP के वॉलंटियर हैं। और हिमांशु, थैंक यू इस ट्रांसलेशन के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सुप्रसिद्ध लेखक नील गेमन ने लंदन स्थित बार्बिकन सेंटर में 14 अक्टूबर 2013 को रीडिंग एजेंसी संस्थान का दूसरा वार्षिक भाषण दिया था। प्रस्तुत है उनके लेक्चर का अनुवाद। जब कोई आपको कुछ बताना चाह रहा हो तो पहले ये जरूरी है कि वो आपको बताए कि वो किस पक्ष में है, उसका झुकाव किस तरफ है और क्यों। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे पठन यानी पढ़ने यानी रीडिंग के विषय में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहानियां पढ़ने का और केवल मजे के लिए पढ़ने का जिंदगी में अहम स्थान है। मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि आप लाइब्रेरी व लाइब्रेरियन के महत्व को समझें और प्रयास करें कि आने वाले कल में भी ये संस्थान बरकरार रहे। और हाँ, मैं काफी हद तक बायस्ड हूं, मतलब आपको ऐसा कहने में मेरा भारी निजी स्वार्थ है। आखिर मैं एक लेखक हूं, कहानीकार हूं, बच्चों और बड़ों के लिए कहानी लिखता हूं। पिछले 30 साल से मैं अपनी रोजी रोटी शब्दों के जरिए कमा रहा हूं। ज्यादातर पहले मन में कहानियां गढ़ के फिर उनको पन्नों में उतार के। इसलिए जाहिर सी बात है कि लोग कहानियां पढ़ें और जगह जगह लाइब्रेरियन की देखरेख में पुस्तकालय हो जो लोगों में पढ़ने के लिए लगाव पैदा करे। इसमें मेरा हित है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एक लेखक होने के नाते इस सब में मेरा स्वार्थ है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बातों में मेरा स्वार्थ एक पाठक होने के नाते है कि जब हम पढ़ने लगते हैं, पढ़ने की क्षमता हासिल करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। और आज की शाम मैं इसी बदलाव के बारे में, इसी पाठन क्रिया के विषय में बात करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पढ़ने का क्या असर होता है, इससे क्या लाभ होता है। कहानियां या फिक्शन, इसके दो उपयोग हैं। पहला, ये एक नशा है जो हमारे अंदर पढ़ने की भूख जगाता है। ये जानने की भूख कि फिर क्या हुआ,
पन्ना उलटने की भूख, आगे पढ़ने की भूख, चाहे पढ़ने में मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि किताब के पन्नों के भीतर कोई परेशानी में फंसा है और ये तो पता करना ही है कि आखिर में हुआ क्या। ये भूख बड़ी ठोस चीज है। ये आपको ठेलती है नए शब्द सीखने के लिए, नए विचार सोचने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए, ये समझने के लिए कि पढ़ने में अपने आप में एक आनंद है। एक बार आपको ये बात समझ में आ गई, फिर आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे। कुछ साल पहले कभी-कभी ये सुनने में आने लगा था कि अब हमने पोस्ट लिटरेट जगत में प्रवेश ले लिया है, जहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं बची है। मगर आज ऐसा कोई नहीं कह रहा है। अब तो शब्द पहले से भी अहम हो गए हैं। हम दुनिया को समझते हैं और इसमें अपना स्थान बनाते हैं शब्दों के जरिए से। और जैसे जैसे दुनिया वेब या इंटरनेट से जुड़ती जाती है, ये जरूरी हो रहा है कि हम बूझें, समझें और आपस में व्यक्त कर पाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते, वो आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते एवं आपस में बोलचाल नहीं सकते। इसके लिए भाषा अनुवाद पर्याप्त नहीं होता है। बच्चों को साक्षर बनाने का सबसे सीधा तरीका है उनको पढ़ने की तालीम देना और उनको एहसास दिलाना कि पढ़ने में आनंद मिलता है, मजा आता है। और इसका सबसे आसान तरीका है उनके मन के लायक किताबें खोजना, ऐसा प्रबंध करना कि किताब उनके पहुंच में हो और फिर उनको किताब पढ़ने देना। मैं नहीं मानता कि कोई किताब बच्चों के लिए बुरी होती है। बीच बीच में कुछ वयस्कों में यह धारणा बन जाती है कि बच्चों की फलाना किताबें किसी एक प्रकार की या किसी एक लेखक की लिखी हुई उनके लिए ठीक नहीं है और बच्चों को इन हानिकारक किताबों को पढ़ने से रोकना चाहिए। कॉमिक्स की आलोचना की गई कि वे बच्चों को निरक्षरता की ओर धकेल रहा है। इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सब झूठे दम से भरी और मूर्खतापूर्ण बातें हैं। कोई भी बाल पुस्तकों का लेखक बुरा नहीं होता। जिसकी किताब बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ते हैं और खोजते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। उन्हें जो कहानियां चाहिए वो ढूंढ लेते हैं, उन कहानियों तक स्वयं पहुंच जाते हैं। कोई घिसा पिटा ख्याल या विचार उनके लिए घिसा पिटा नहीं होता है। वो तो इससे पहली बार अवगत हो रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि सबकी पसंद नापसंद आप जैसी नहीं होगी। हमको अपने बच्चों को पढ़ाई की सीढ़ी पर चढ़ाना है। कोई भी किताब जो वे पढ़ना पसंद करते हो, उनको पाई दर पाई साक्षरता की ओर ले जाएगा। हाँ, मगर ध्यान रहे, ऐसा ना कीजिएगा जो मैंने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ किया था। जब वो R.L. स्टाइन की किताबें चाव से पढ़ रही थी, तब मैंने उसको स्टीवन किंग कृत उपन्यास कैरी दिया, ये कहकर कि अगर स्टाइन की किताबें तुमको पसंद आई तो ये तो बहुत ही अच्छी लगेगी। उसके बाद से तो अपनी किशोरावस्था में मेरी बेटी हॉली ने केवल हल्की फुल्की कहानियां ही पढ़ी और वो आज भी स्टीवन किंग के नाम से मुझे गुस्से भरी नजरों से देखती है। कहानियां पढ़ने का दूसरा लाभ है कि वे सहानुभूति की भावना को जगाते हैं। पढ़ते पढ़ते आप एक और बहुत महत्वपूर्ण सीख सीखते हैं। वो है, दुनिया जैसी है जरूरी नहीं कि वैसी ही रहे, उसको बदला भी जा सकता है। वर्ष 2007 में मैं चीन गया था। चीनी इतिहास के पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृति प्राप्त साइंस फिक्शन व फैंटेसी कन्वेंशन में। वहां मैंने एक उच्च पदाधिकारी से पूछा, आखिर क्यों इतने समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ने साइंस फिक्शन को अस्वीकृति की निगाहों से देखा? अब क्या बदल गया? सीधी सी बात है, उन्होंने कहा। चीनी लोग चीजों को बनाने में बहुत माहिर थे। अगर बनाने का प्लान या नक्शा कोई लाके उनको दे दे, मगर वे खुद नई चीजों का आविष्कार नहीं करते थे। वे कल्पना नहीं करते थे।
तो उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजा, जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल गए और वहां उन लोगों से बातचीत की जो कह सकते हैं भविष्य का निर्माण कर रहे थे। और उनको पता चला कि वो सब तकनीकी विशेषज्ञ बचपन में साइंस फिक्शन पढ़ते थे। कहानियां आपको एक दूसरी दुनिया दिखा सकती है। वो आपको एक ऐसी जगह ले जा सकती है जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। और एक बार अगर आप अन्य जगतों का भ्रमण कर चुके हो, तो उनकी तरह जिन्होंने जादुई फल चख लिया हो, आप भी जिस दुनिया में पले बढ़े हैं, उससे कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। असंतुष्टि एक अच्छी चीज है। लोग अपनी दुनिया को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। पहले से फर्क छोड़ सकते हैं। ये समझकर बैठ जाना तो आसान है कि कोई कुछ नहीं बदल सकता है, कि हमारी इस दुनिया में समाज बहुत बड़ा और ताकत वाला है और एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं, एक अणु मात्र, जैसे धान के खेत में चावल का एक दाना। मगर सच तो ये है कि एक अकेला इंसान दुनिया को बारंबार बदलता है। अकेला इंसान भविष्य का निर्माता होता है और वो ऐसा कर पाता है ये कल्पना करके कि हकीकत और हालात बदले जा सकते हैं। अपने आसपास देखिए, सचमुच सर घुमा के देखिए, एक पल ठहरिए और चारों तरफ देखिए जिस कमरे में आप हैं। मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो इतनी जाहिर सी है कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। और वो बात है कि आपको जो भी कुछ दिख रहा है, यहां तक कि ये दीवारें, हर चीज की किसी ने पहले कल्पना की थी। किसी ने सोचा कि कुर्सी पर बैठना जमीन पे बैठने से ज्यादा आसान होगा और उसने कुर्सी की कल्पना की। राजनीतिक आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन सब शुरू हुए क्योंकि लोगों ने जिंदगी जीने की एक नए तरीके की कल्पना की। हमारा दायित्व है कि चीजों को सुंदर बनाने का, न कि दुनिया को और भद्दा बनाने का, सागरों को खाली करने का, अगली पीढ़ी के लिए अपनी समस्याओं को छोड़ने का। हमारा दायित्व है कि किए हुए को साफ सुथरा करने का, न कि अपने बच्चों के लिए तोड़ी मरोड़ी दुनिया छोड़ने का। हमारा दायित्व है अपने नेताओं को बताना कि हमें क्या चाहिए। उन नेताओं के खिलाफ वोट देना है, चाहे वो जिस किसी पार्टी के भी हो, जो पढ़ने को अहम स्थान नहीं समझते हैं। एक सार्थक नागरिक बनाने में, जो ज्ञान के पनपने और संरक्षण में और साक्षरता को प्रोत्साहन देने में विश्वास नहीं रखते। ये पार्टी की राजनीति का सवाल नहीं है, ये मानवता का सवाल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार पूछा गया था कि हम बच्चों को बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं। उनका जवाब सरल और विवेकपूर्ण था। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान हो, उनको परिकथाएं पढ़ के सुनाओ। अगर तुम चाहते हो कि वे और बुद्धिमान हो, तो उनको और परिकथाएं पढ़ के सुनाओ। पढ़ने का, कल्पना करने का मूल्य वो समझते थे। मेरी आशा है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया दे सकें जिसमें वे पढ़ेंगे और उनको लोग किताबें पढ़ के सुनाएंगे और कल्पना करेंगे और समझेंगे। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और राउंड ऑफ अप्लॉज जहां पे भी आप बैठे हैं, तालियां बजा लीजिए। अगर आपके भी घर के कुत्ते और बिल्लियां थोड़े डर गए तो कोई बात नहीं, because that was an incredible performance, and thank you so much to Sonali ji for tuning in and joining us. Now I want to talk to you about India, right? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के बाद हमने डिसाइड किया था कि भाई हम डेमोक्रेसी होंगे, हम डेमोक्रेसी बनेंगे। लेकिन even after 72 years we have a large number of people who are not included in this idea of democracy, because we always think कि ये डेमोक्रेसी तो इतनी बड़ी चीज है ना, वो तो पार्लियामेंट में बनती है या मतलब सरकार बनाती है। But the truth is, democracy is in our hands. And the closest example of a democracy is in libraries.
Because for people who are not included in this idea of democracy, even today, a library is the most democratic of all spaces. कोई नहीं आपको बता सकता क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या आइडिया आना है. It truly is a place where the mind is without fear. And the TCLP is a response to this uneven idea of democracy, to make it more uneven. Even in lockdown, जब मैं कबड़ के नीचे से अपने बाल मतलब झाड़ू कर रही थी, इन्होंने एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बना दी, and the kind that uses WhatsApp and YouTube so that even someone with basic smartphone and limited access to the internet can use it. Right now, TCLP has developed a library curriculum for first generation schoolgoers, meaning those who are probably engaging with books for pleasure rather than schoolwork. For kids who can approach reading सिर्फ काम से ही नहीं लेकिन प्यार से. और वो क्या है ना, इंडिया में कहते हैं कि साहिब गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. लेकिन TCLP की लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां पे बुक से भी और प्यार से भी प्यार हो जाता है. Our next performance is a story about a young boy who talks about his green chhatri. It is told by the National Award-winning lyricist and writer Varun Grover. नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर. ये जो उल्टा मुंह करके सो रहे हैं, ये हैं इस घर के राजकुमार छेनापोड़ा. और अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे. कहानी का शीर्षक है हरा समंदर गोपी चंदर. कहानी क्या है? घटना है जो मेरे साथ हुई थी जब मैं 9 साल का था. मेरी वजह से हुई थी जब मैं 9 साल का था. जब तक मैं 9 साल का था, मैंने कभी समंदर नहीं देखा था, दूर से भी नहीं, सिर्फ टीवी पे, फिल्मों में. मैं रहता था देहरादून में और पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के स्कूल में. 9 साल की उम्र तक न मैंने समंदर देखा था और न मेरे पास अपनी कोई छतरी थी. देहरादून में हर साल बारिशें होती थी, लेकिन मेरे पास एक रेनकोट था पुराना सा, जिसमें मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता था. तो इसलिए जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक छतरी ला कर दी, वो भी समुंदर के हरे रंग वाली. समुद्री हरे रंग की वो छतरी इतनी सुंदर थी कि मेरा मन करता था कि बारिश होगी भी तो मैं इसे खोलूंगा नहीं. मैं मानता था कि वो छतरी गंदी नहीं होनी चाहिए. बात उन दिनों की है जब बारिशें आने ही वाली थी. हम हर रोज स्कूल जाते थे. हमारा मिलिट्री का ट्रक आता था, शक्तिमान नाम का ट्रक, जो अभी भी चलते हैं. शक्तिमान ट्रक में हम बच्चों को सिपाही साहब खींच के ऊपर ले लेते थे और हम भी खचाखच भीड़ भरे उस ट्रक में हम सारे बच्चे इकट्ठे खड़े होते थे. बड़ा मजा आता था. छाता मैं जब स्कूल ले गया तो बाकी के सारे बच्चों को भी बहुत जलन हुई. वो मुझसे पूछने लगे कहाँ से लिया, कितने का लिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई और एक तरह का एरोगेंस आया मेरे अंदर कि वाह, मेरे पास कोई बहुत ही बेशकीमती चीज है. अभी बारिशें शुरू भी नहीं हुई थी. 3रा या 4था दिन था छाता लिए हुए मुझे, जब मैं जिस दिन स्कूल से वापस आया. शक्तिमान ट्रक ने हमें हमारे बस स्टॉप पे ड्रॉप किया और वहां से हम बच्चे पैदल घर की तरफ आ रहे थे. मैंने कुछ नोटिस किया. घर से शायद मैं 100 कदम की दूरी पे था कि मुझे अचानक से महसूस हुआ, बस ऐसे अंदर से एक इंट्यूशन सा होता है ना, कि कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया है. मैंने अपने बैग को टटोल के देखा जो मेरे कंधे पे था, और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी छतरी, हरे समुंदर के रंग वाली वो छतरी गायब है. मैं उसे कहीं भूल गया हूं, वो मुझसे कहीं गिर गई है, मैं उसे कहीं छोड़ आया हूं. और ये मेरे लिए बहुत ही डरावनी बात थी, क्योंकि एक तो मैं उस छतरी से बहुत प्यार करने लगा था सिर्फ 3 ही दिनों में. दूसरा, हमारे घर में वैसी महंगी चीजें उससे पहले कभी नहीं आती थी और मुझे पता था कि मम्मी पापा ने अपनी लिमिट से थोड़ा बाहर जाकर, फाइनेंशियल लिमिट से, ये छतरी मेरे लिए लाकर दी है. और तीसरा, अब मैं घर में क्या कहूंगा, इस लापरवाही का मैं क्या जवाब दूंगा कि इतनी सुंदर और इतनी महंगी और इतनी जरूरी चीज, बारिशें आने ही वाली हैं, मैंने उसको खो दिया है.
मैं सोचते सोचते घर पहुंचा और मैंने सोच लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। मैं मम्मी को बता दूंगा कि छतरी मुझसे कहीं छूट गई। पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैं घर के अंदर गया और मम्मी ने मुझे देखा, और मम्मी ने अभी कुछ पूछा भी नहीं था, उनको कुछ पता भी नहीं था। मैं रोने लगा और मैंने कहा कि वो छतरी किसी ने मुझसे छीन ली, कोई वो छतरी मुझसे छीन के ले गया। मम्मी ने बोला कौन ले गया, कहाँ? मैंने कहा कि मैं स्कूल में लंच टाइम में टिफिन खा रहा था, क्लास में बैठकर चुपचाप, और एक कोई बड़ा लड़का आया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने वो छतरी मुझसे छीन ली। मम्मी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई स्कूल में एक छोटे बच्चे से छतरी छीन के कैसे ले जा सकता है? और मैंने कहा कि नहीं, वो हो गया, मैं क्या बताऊं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। और ये कहकर मैं और रोने लगा ताकि मुझे जवाब ना देना पड़े। मम्मी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मुझे लगा बात खत्म हो गई है, गलती है मेरी, मैं कुछ छोड़ आया हूं, मुझे लगा हो सकता है कल शायद स्कूल में मिल ही जाए, मैं जहां छोड़ के आया मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगी तो मैं कह दूंगा कि वो लड़का वापस ले गया, या वो लड़का रख गया था, या वो, है ना, कोई भी कई 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 तरीके हो सकते हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए। लेकिन शाम को पता नहीं मम्मी और पापा के बीच में क्या बात हुई, और मुझे कुछ नहीं बताया गया कि अगले दिन सुबह जब हम स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मम्मी ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और हम इस बात की शिकायत लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि किसी छोटे बच्चे की छतरी कोई सीनियर चुरा के ले जाए। मेरा खून सूख सा गया। मुझे लगा कि अब तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्कूल में जाकर जब प्रिंसिपल मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कितना झूठ बोल पाऊंगा। लेकिन मैं पूरे रास्ते उस झूठ को दोहराता रहा, क्योंकि अब एक झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना जरूरी हो गया था। मैं स्कूल पहुंचा, मम्मी प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल से शिकायत लगाई कि आपका स्कूल कैसा है और आपके स्कूल में किस तरह की गुंडागर्दी होती है कि किसी बच्चे का छाता छीन के लोग ले जाते हैं, वो भी इतना सुंदर हरा समुद्री रंग का छाता। प्रिंसिपल ने मुझसे सवाल किए और मैं अब तक बड़े पक्के जवाब बना चुका था, और अपने मन ही मन उस झूठ को दोबारा बोलने के लिए थोड़ा सा सच मान चुका था। मैंने कहा कि वो हो गया सर, मैं लंच में अपने क्लास में बैठा हुआ था, क्लास में और कोई नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जो ये कह सके कि मेरी कहानी झूठ। मैं अकेला बैठा था और वो सीनियर आया और उसने मुझसे छाता मांगा, और मैंने उसको छाता दे दिया, और फिर उसने कहा मैं कभी नहीं लौटाऊंगा। मैंने उससे फिर मांगा तो उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया, मैं रोने लगा। उसके बाद वो गायब हो गया, मुझे नहीं पता वो कहां से आया था, कहां चला गया। प्रिंसिपल सर को भी मेरी बात इतनी सच लगी, उन्होंने कहा हम इसका हल निकालेंगे, हम तुम्हारा छाता ढूंढेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन दिनों दूरदर्शन पर व्योमकेश बख्शी नाम का शायद शो आता था, और प्रिंसिपल सर के अंदर का सत्यान्वेषी, सत्य की खोज करने वाला जाग चुका था। उन्होंने कहा कि इसकी तह तक हम जरूर जाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारा छाता दिलवाएंगे, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ चलें? उन्होंने कहा कि हम हर क्लास में जाएंगे और तुम हर क्लास के हर बच्चे को देखोगे और पहचानोगे कि उनमें से वो कौन है जो तुम्हारा छाता लेके चला गया। मैंने कहा सर सीरियसली, मतलब हम हर क्लास में जाएं? उन्होंने कहा हाँ जी, हर क्लास में जाएंगे। और वो हुआ। उसके बाद हमने 12वीं क्लास से शुरू किया, और हर बच्चे की मैं शिनाख्त करते हुए, जैसे कि मुजरिम पुलिस ऐसे मुजरिमों की लाइन लगा देती है और उसमें से आपको पहचानना होता है कि असली मुजरिम कौन है, हत्यारा कौन है, मैं हर क्लास में अपने से कुछ 2 फीट लंबे ऊंचे लड़कों को देखता रहा और उनको पहचानता रहा, और मैं सोचता रहा कि अगर सच में भी कोई इनमें से मेरा छाता ले गया होता तो क्या मेरी हिम्मत होती है कहने की कि सर ये जो लड़का है, ये जो है ना, ये 6 फीट वाला, और मैं जो हूँ 3 फीट, ये जो है ये मेरा छाता चुरा के ले गया। मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं वो नाटक कर रहा था, और हर क्लास में वो नाटक हमने किया, और वो नाटक करते करते उस दिन पूरा दिन बीत गया। हमें शायद 5-6 घंटे हम लोग सिर्फ यही करते रहे, और थक हार कर प्रिंसिपल सर ने भी हार मान के कहा कि
ठीक है, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे, हम हर क्लास में ढूंढ लिए, आपका छाता शायद अब नहीं मिलेगा। उस समय भी मेरे दिमाग में एक बार आया कि क्या ये सही समय है सच बोलने का, क्योंकि मैं बहुत लोगों को झूठ बोल चुका हूँ, मेरी वजह से कितने लोगों को कितनी परेशानी हो चुकी है। मम्मी सुबह से स्कूल में है, प्रिंसिपल सर सुबह से मेरे साथ सैर कर रहे हैं हर क्लास की, और मैं हर बच्चे को पहचान रहा हूँ, हर बच्चे के अंदर का चोर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब अगर मैंने सच बोला तो सिर्फ प्रिंसिपल सर नहीं बल्कि स्कूल के हर टीचर को बुलाया जाएगा मुझे पीटने के लिए, और शायद सिर्फ स्कूल के हर टीचर को नहीं, भारतीय मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के हर सिपाही, हर कैडेट, हर ऑफिसर को बुलाया जाएगा कि इस बच्चे को जरा दो लगाइए। तो मैं चुप रहा, वापस हम लोग घर आ गए। एक पूरी कोशिश की गई छाता ढूंढने की जो असफल हुई, और धीरे धीरे बात आई गई हो गई। मुझे लगा ठीक है, सब लोग भूल चुके हैं, सब लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं भी आगे बढ़ गया। अभी भी मेरे सपनों में कभी कभी वो समुद्री हरा रंग उसका आता था, और मैं सोचता था कि काश वो छाता मुझसे न खोया होता। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई थी। एक साल बाद, करीब 1 सवा साल बीता होगा, एक दिन सुबह मॉर्निंग असेंबली खत्म हुई थी तो एक टीचर माइक पर आई, और उनके साथ एक 2-3 बड़े बड़े बक्से थे, गत्ते के डब्बे थे जिनमें की सामान था, और उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि ये स्कूल का स्टोर रूम आज हमने खोला है बहुत दिनों बाद, और इसमें बहुत सारा खोया हुआ सामान है बच्चों का जो आज हम लौटाना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके ये सामान दिखाऊंगी, और जो बच्चा इस सामान का ओरिजिनल हकदार है वो आगे आए और वो कहे कि ये मेरा है और खो गया था, वो ले जाए। तो उन्होंने एक एक करके उसमें से सामान निकालना शुरू किया। किसी का पेंसिल बॉक्स था, किसी का टिफिन बॉक्स था, किसी का स्वेटर था, किसी का मफलर था, किसी के जूते थे। मैं नहीं समझ पाया कि ऐसे कौन बच्चे थे जो अपने जूते छोड़ के चले जाते थे, लेकिन मैं भी ऐसा ही एक बच्चा था जो अपनी छतरी छोड़ के जा चुका था। और 10-12 सामान के बाद अचानक से उन्होंने एक टूटी फूटी हालत में एक छतरी निकाली जिसका रंग धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसमें अभी भी जरा सी धूल मिट्टी के नीचे हरा समुद्री रंग साफ दिख रहा था। वो छतरी हवा में लहराई उन्होंने और कहा कि ये किस बच्चे की है, और मेरी आत्मा कांप गई। मैं घबरा गया। उस दिन सर्दी गर्मी कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे एक साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी। मैं पसीने भी छूट रहे थे, मुझे गर्मी भी लग रही थी, मुझे सर्दी भी लग रही थी, कपकपी छूट रही थी। मुझे लगा कि ये कहां से वापस आ गया। मैं चुपचाप अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। मैंने वहां कहीं क्लेम नहीं किया, कोई हाथ नहीं उठाया कि ये मेरी छतरी है। लेकिन मैं अपनी क्लास में पहुंचता उससे पहले ही एक टीचर आए और उन्होंने कहा कि आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मैं प्रिंसिपल सर के कमरे में गया, वहां भी मेरी बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहां खड़ा रहा। प्रिंसिपल सर से नजरें भी नहीं मिला रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम बस कल अपने मम्मी पापा को बुला कर लाना। शाम को मैं घर गया और अपने मम्मी पापा को मैंने पूरा सच बताया। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। झूठ की डोर में इतनी लंबी खींच चुका था कि अब वो टूट गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा को पूरा सच कहा और कहा कि आपको कल स्कूल चलना है। अगले दिन सुबह मम्मी मेरे साथ स्कूल गई। हम लोग प्रिंसिपल के चेम्बर में गए। वहां पे उनके टेबल पे वो छतरी रखी हुई थी। उन्होंने पहले मुझे डांटा, फिर मेरी मम्मी को डांटा। मेरी मम्मी ने पहले मुझे डांटा और फिर मुझे कूटा, और मैंने वो पिटाई बिल्कुल पूरे मन से स्वीकार की, क्योंकि मैंने इतने लंबे, इतने बड़े, इतने चौड़े, इतने शदीद घटिया झूठ बोले थे कि मुझे पिटना था ही। वहां पिटाई हुई। प्रिंसिपल ने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। वो छतरी मुझे वापस थमा दी गई। वो छतरी लेकर हम घर आए। शाम को जब मेरा दिमाग एकदम खाली था, सिर्फ शर्म थी, थोड़ा सा गुस्सा था कि मेरे पास 1 साल था सच बोलने के लिए।
एक बार बात खत्म हो गई थी, सब लोग उसे भूल चुके थे, तब भी मैं शायद घर पे सच बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला मैं नहीं जानता, लेकिन उस शाम उस सारी शर्म, उस सारे गुस्से, उस सारी हार के बावजूद मेरे अंदर एक छोटी सी खुशी थी कि वो हरे समुद्री रंग वाली छतरी वापस मेरे सामने पड़ी थी। शुक्रिया। यार तुम लोग तो बड़े लकी हो गए कि यार नेशनल अवार्ड विनिंग लोग आके यहाँ पे इस लाइब्रेरी कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। और स्कूल की बात हो रही थी, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती थी, किसी को याद है हम स्कूल में जब एस्से लिखते थे? तो आई नो कि मेरी पर्सनल गारंटी है कि यहाँ पे हर किसी को एक ना एक बार एस्से का सब्जेक्ट आया है, राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कॉइन। And you know what? I want to tell you today of the life of a coin that is donated to TCLP, because each rupee donated goes a long way towards maintaining the libraries, towards holding workshops to learn new skills. अरे अभी मैंने लाइब्रेरी फेस्टिवल में एक नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप की एनी जैदी के साथ। इतने आइडिया आए हैं ना, बस अभी पूरी रात बैठ के मैं लिखने ही वाली हूँ। They go towards paying the salaries of passionate people and even student leaders जो आते हैं दरवाजे में रीडर बन के और खड़े हो जाते हैं यहाँ पे लीडर बन के। We always look for value for money, na? The best value for money is when you donate to a library. And why library? Because libraries are the warehouse of ideas. You know, when someone says idea आया, कहाँ से आया? अरे आइडिया करण अर्जुन है क्या जो राके के पीछे वापस आएगा? क्योंकि ideas come from our hearts and our minds when we get to know each other through our stories. अभी मैं comments देख रही हूँ यार, और मतलब you know दस्तक के मतलब इतने प्रेज आ रहे हैं। the piece that Sonali read, उसकी इतनी प्रेज आ रही है। अब इस पीस के लिए, वरुण ग्रोवर के पीस के लिए इतनी प्रेज आ रही है। एंड इट गोज टू शो कि यार स्टोरीज इतना कनेक्ट कर सकते हैं हमें। Ideas also lead to thoughts, and thoughts translate to revolutions. That's why the government is always trying to control, when it's trying to control its people, it realizes ki when ideas are in the right hand, no, then they're weapons. And they cannot be confined by 56 inches, military strike and corporate monopolies. Jiyo, lekin kitabe padh ke jiyo. And because readers, they become thinkers. शायद इसीलिए free libraries का idea इतना खतरनाक है ना. And I have found to myself that the most valuable thing in my wallet has been my library card. अरे एक बार क्या हुआ, जब मेरे डैड का वॉलेट चोरी हो गया ट्रेन में, तो वापस आए, बोले अरे यार मेरा बटुआ चोरी हो गया। अब क्या करोगे, आपको नए कार्ड मंगवाने पड़ेंगे। इसे वो तो वीसा मास्टर कार्ड तो आ जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड नहीं आने वाला। बिकॉज a library card is like a purchase of ideas, a purchase of revolutions. तो इसीलिए इस वक्त ऑफ कोर्स हर लाइब्रेरी को बुक्स की जरूरत है, लेकिन इस साल TCLP को फंड्स की जरूरत है ताकि ये रेवोल्यूशन ये कैरी ऑन कर सके। और अब हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो मतलब बहुत सारे जॉनर्स जो भी पंक, रॉक, जैज कंबाइन करके दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ आइडियाज एंड फ्रीडम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्कावेंजर्स। Respect. My name is Taru. Some of you know me as Delhi Sultanate. Some of you know me from the Scavengers. Some of you know me from Base Foundation Roots. Some of you know me from Artists Unite. As a child, I was very lucky to grow up in a place that had an amazing free public library. And they had a children's section which was done very lovingly. And there, we weren't being policed. It was very warm and welcoming, and we had access to books, to storybooks, access to adult books as well. And I just remember being there, and as opposed to kind of school where you're meant to study, there out of our own kind of free agency, we had access to ideas. And I was also very lucky because my parents had a lot of books, and my parents, especially my father, read to me a lot, just like they do in the community library.
You know, I remember we had a collection of fairy tales from all across the world. So I grew up listening to stories from the island of Tonga, you know, this the South Sea, Pacific, all kinds of places in the world. They read many books to me, and I think that both for my emotional development, this was very important even before I started reading myself. And also in terms of thinking, it's kind of something that was instrumental in helping me how to think. So I've known about the community library project for some years, and I must say that of all the kind of social and political movements I've seen, it's one of the things that have kind of filled me with the most hope and that I also thought are the most proactive. You know, it's the least reactive of things. It's a wonderful place. There's great vitality when you go there. It gives kids access to books, and I think that at least in that area, the place has really made a difference. You know, it's really made a difference. And raising kids that know how to think independently, that are sensitive, that think critically, that know how to listen to that voice in their head is very important. I mean, honestly, I feel like it's one of the few hopes that we have in these dark and troubling times. So, you know, support them in whichever way you can. You know, log into the free the community library project.org and yes, and support and send your kids there too. Well, all right, people, we are the Scavengers, and where I say go so like this. Well, all right, people. Turn me loose. You wanna 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 rein me in. How you You wanna rein me in. You wanna rein me in, but you made me a monster. Scavengers in your area, from New Delhi we reaching out to take care of ya. We play tunes in the winter and tunes in the summer. Get mad with the nigga with the bassline and get mad. We bring the drummers in, mad them again, mad them again, mad them again. Come, mad them again, mad them again, mad them again, mad them again, mad them again. We play tunes all seasons of the year. Make your worries disappear. You wanna turn me loose. You wanna turn me loose. You wanna turn me loose. You wanna rein me. You wanna rein me. You wanna rein me in, but you made me a monster. Circumstances turn me to a monster. Don't like the evil, wicked things and sponsor. Remember spread like cancer. And I don't like Tata Bella, and I really don't like Vedanta. Mad them again, come, mad them again, mad them again. We play tunes all seasons of the year. Make your worries disappear. You wanna turn me loose. You wanna turn me loose. You wanna turn me loose. You wanna rein me. You wanna rein me. You wanna rein me in, but you made me a monster.
St. George's River, to the Nile down, to the Ganga, to the Mekong, from John down to the Van Dunk, Conference, birth of Malcolm. We get up on the body and circles, reading Marcos and Galliano, Emiliano Zapata, Tupac and Mano. Samunda, Patrice Lumumba, Spring Guna, Brimstone and Thunder. You can choose all seasons of the year, make your worries disappear. Pull up. To our murderous police, East Indies to the West Indies. Vampire, all of them are murderer. All of them are vampire, parasite, they have us under pressure. All of them are vampire, all of them are murderer. All of them are vampire, parasite, they have us under pressure. Now hear this. Enough man line up for the execution. When RSS and police have a plan. Plus, enough of them in a extortion. They will collect them trucks on Oprah's poor man. Them from autos and street vendor. To the upper class they have a sweet temper. To the lower class they have a hot temper. Many people wind up dead in detention center. Freshfield man dead and nobody remember. Pulwama man dead and nobody remember. Manipur man dead and nobody remember. They murder people, I call it encounter. Come on, all of them are vampire, all of them are murderer. They might be under pressure. Now hear this. We say police the accelerator. Make enough man come meet the maker. Guns and things that a body breaker. When it comes to murder, them a perpetrator. Among them never pure investigator. All of them follow government order. No fuse the line up just they get slaughter. They murder people and call it encounter. All of them are vampire, all of them are murderer. They might be under pressure. Huh. Vampire, vampire. He is a murderer, murderer. And you is a murderer. Hey. I got a boy, I'm sure that he's the one. He's a pretty little thing and he really goes for me.
He's got those two big sparkling eyes. Heaven must have kissed him. He's the boy that radiates that charm. I got a boy, I'm sure that he's the one. He's a pretty little thing and he really goes for me. He's got those two big sparkling eyes. Heaven must have kissed them. He's the boy that radiates that charm. Up in the morning just to make some money. Oh, man. When I draw my pay, I give it all to him. Just to see his eyes light up, ooh, it's crazy. He's the boy that radiates that charm. Late in the evening, we light a cigarette. I'm filling up our glasses, listening to the hi-fi set. Turn them bright lights way down low. Ooh, it's crazy. He's the boy that radiates that charm. He's the boy that radiates that charm. He's the boy that radiates that charm. Yeah. Well, all right now, people. Move, don't blink, don't break, don't think when bad man there. Real bad man there. See what you know about you, Roy. I, Roy. Super Cat. Brigadier Jerry, you there. Real bad man there. Okay, see what you know about Super Cat. Junior Cat. Early beat. Trinity, you there. Real bad man there. Kilimanjaro. Stone Love. Sky Juice. Metro Media, see we there. Real bad man there. Now hear this. I'm a sphinx, part woman, part lioness. I've acquired a power somewhat familiar. I adorn myself with binaries, the body that fears
still naked in my mirror. Are you ready? I have been weighed and measured, my words found wanting long before their utterance. Shall I be silent? Shall I roar? Shall I roar? Shall I roar? Bad man in the territory, anything try to test put out the merit. I've no words and not the vocabulary. Not books them there, not me library, cause I see it. Mark on the beast from the north, west, east to the south, so we can't see it. This are the mark of the beast. Now hear this! Flesh and stone in ruin, festering fears are blooming. Moral monsters right by your side, messengers divine, will you fall in line? डालो मैं मर जाऊंगी, मरते मरते ये साबित कर जाऊंगी, जिंदगी भी मौत है, मौत भी है जिंदगी। Henchmen in all the area, sound the alarm. Police and paramilitary better keep calm. My people are in the eyes of the storm, some dead and gone until the next leader born. RSS is in the area, sound the alarm. Police and paramilitary better keep calm. My people are in the eyes of the storm, some dead and gone until the next leader born. Imagine all of the tribes to beautify and start to sing in one chorus. Black love the sun, no major laser tourists. Be nurture and nourish, let the love flourish. Respect to all the Naxalite guerrillas in the forest. Now Republic enemy number one. Tell me, isn't it wondersome? Mascot of Magani, where his riches and his plunder from. We're outlaws like Vida Pan and Sandakan. Respect to all of the warriors, Indian and African, a sound system. What? Let me make it clear. Like Top Gun said, when the music hit, your worries disappear. System set up all seasons of the year. Remove anxiety and fear. मार डालो मैं मर जाऊंगी, मरते मरते ये साबित कर जाऊंगी, जिंदगी भी मौत है, मौत भी है जिंदगी। Flesh and stone in ruin, festering fears are blooming. Moral monsters right by your side, messengers divine, will you fall in line? Night and day there is morning,
written in blood, there's a warning. Hush, beating heart, scream lullabies. In the shadow of death, will you walk on by? Walk on by. Walk on by. Walk on by. It was the middle of the night, like 20 to 4. Outside rain pour on thunderclap roar. Suddenly I hear a noise from my door. Tip it up, peek out. I wonder what was in store. I say for my touch a block, but him pressing on me back and me feet on the floor. Agents of secret police out upon a tour. Deja vu somewhere I've seen this as before. Countless coverage endure, consequences on war. Murder junkie, murder sabit, murder junkie, murder junkie, murder sabit, murder junkie. जिंदगी भी मौत है, मौत भी है जिंदगी. All right, can you hear me now? That's it. So a round of applause for Scavengers for putting together. I can see the comments. Everyone's going mad and really enjoying this performance. And so a round of applause for them wherever you're sitting. Let people know कि भाई हमारे भी मजे हो रहे हैं यहाँ पे. Thanks to the Free Library Festival. Now, you know when they say there's an old saying कि जब charity करते हो ना, अगर इस हाथ से देते हो तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि charity हो रही है. Lekin, the Free Library Festival and the Community Library Project has decided to make this deal sweet for you. One second. Is Tilak R has just told me my mic is on mute. Am I still on mute? Can you hear me? Give me a thumbs up in the comments if you can hear me. Give me a thumbs up. I like that Monica Yadav is just doing elbow coughs throughout. There's somebody recommending hand wash and elbow cough. Thank you, Tilak R. That's right. So now, what if I told you that TCLP and the Free Library Festival is going to sweeten the deal for you कि आप donation भी कर सकते हो और कुछ घर भी लेके जा सकते हो, right? Because that's what the auctions have been about, is where you give something, you also get something. Now, the auction items are amazing. I am on this website right now. The bidding items are available for YouTube. They're, for Facebook, they're in the description box above, and for YouTube, they're in the description box below. Go check them out because there are some amazing things given very lovingly and thoughtfully by a lot of celebrities who are supporting the Free Library movement. There is a gorgeous sari by Shobha Day. There are jackets of Jaipur Pink Panthers, which is Abhishek Bachchan's kabaddi team. And there are some holidays going around, some stays in cottages and stuff in the hills. So there's a lot of stuff that's available. And here's the thing. Now, we were supposed to close the auction today. With this concert, we were supposed to end the auction. But due to the response, they've decided to extend the auction all the way till January 2nd. And here's the thing, right? To sweeten the deal further. Matlab ye nahi, of course, ki tum the lofty ideas of library and ideas and forwards. Lekin you can
right now, bid on the items in the links above and below, depending on what platform you're watching it on. And you will get the bidding item at 50% of the bidding price. And this is now we spoke about Abhishek Bachchan already, the fastest finger first. So whoever gets there and places a bid on it right now, as soon as they can, will get the item. It's about getting there as soon as you can. Now, look, I would suggest, because the next performance is also amazing, so I would suggest don't tune out of this in order to go bid. I'm saying दूसरा laptop निकाल दो, अपना phone निकाल दो और जाके किसी और को दोस्त को बोल दो कि start the bidding right now. Our next performance is, one of the features of what TCLP does, the libraries in TCLP do is they do read alouds. जहाँ पे एक इंसान बैठता है और they read out a story and जाके anyone who visits can listen to the story. And we thought, now if we're going to do a concert for you, we might as well do a read aloud for you so that you can see what it feels like, right? We have with us one of the finest storytellers of our generation, Mr. Danish Hussain, with us tonight to tell you a story. He's also one of the #1 Dastan Goes in Asia and one of the #1 kisse-bazes in India. So without further ado, जब आप और मैं राजी तो हो जाए थोड़ी किस्सेबाजी with Danish Hussain. आदाब, मैं दानिश हुसैन। जब मैं छोटा था तो बचपन में ही मेरे मामू मेरे लिए पेंगुइन बुक में काम करते थे और वहाँ जो रिजेक्टेड कॉपीज होती थी, सैम्पल कॉपीज होती थी किताबों की, वो मेरे लिए लेके आते थे और मुझे गिफ्ट कर देते थे। और इस तरह मेरी पहली लाइब्रेरी बनना शुरू हुई। जब इस काबिल हुआ कि मैं डीटीसी बसेस में घूम सकूं तो 11-12 साल की उम्र में मेरी वालिदा, मेरी अम्मी ने मुझे डॉल्स म्यूजियम के ऊपर एक लाइब्रेरी होती थी, डॉक्टर BC रॉय चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, उसका मेंबर बनवा दिया। और उस लाइब्रेरी का मेंबर बनने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वैसा ना रहा जैसा मैं बचपन में था। इसलिए किताबें बहुत जरूरी हैं। द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का ये फंडरेजर एक बहुत ही शानदार मुहिम है। इसको सपोर्ट कीजिए, दिल खोल के चंदा दीजिए, क्योंकि यकीनन जिस मुल्क के बच्चों के हाथों में किताबें होंगी उस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। तो स्वाइप कीजिए, जो लिंक नीचे दिया गया है उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस पर जाकर चंदा दीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए और जहां तक हो सके और लोगों के साथ शेयर कीजिए। यकीनन वी शुड हैव फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी रेस, ऑफ एनी कल्चर, ऑफ एनी जेंडर, ऑफ एनी रीजन। आदाब, द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट फंडरेजर में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। तो आओ सुनाएं तुम्हें कहानी जिसमें नहीं तुम्हारी नानी, नानी का इसमें क्या काम, कोरी कल्पना ही का काम, दूर गेम ऐप टीवी से, पापा मम्मी दीदी से, एक दुनिया ऐसी हाय जो तुम्हारे मन को भाए। आओ चले तुम्हें वहां लेकर, बिन घोड़ा गाड़ी या मोटर। तो पेश है दुनिया की सबसे पहली कहानी। ये दुनिया की सबसे पहली कहानी है। इससे पहले कोई कहानी नहीं रची गई थी। अगर कोई आपसे कहता है कि इससे पहले कोई कहानी रची गई है, गलत बात बाहर निकालिए और सिर्फ मेरी और मेरी बात पे यकीन कीजिए। तो दुनिया की सबसे पहली कहानी ये है कि एक गांव में एक मियां और एक बीवी रहा करते थे। अब बीवी के मन में एक राम कथा थी और एक राम भजन था, पर बीवी ना किसी को राम कथा सुनाए ना राम भजन सुनाए। राम कथा और राम भजन दोनों बीवी के मन में यूं बैठे, उनका दम घुटता। वो हर वक्त यही सोचते, इसी इंतजार में रहते, यही फिक्र करते कब बीवी अपना मुंह खोलेगी और हम दोनों बाहर आएंगे और दुनिया हमको सुन पाएगी। तो भैया बीवी न राम कथा सुनाए न राम भजन गाए। एक दिन बीवी इत्तेफाक से मुंह खोल के सो गई। अब राम कथा और राम भजन दोनों ने सोचा बाहर निकलने का यही मौका अच्छा है। दोनों रेंगते हुए उसके मुंह से बाहर निकले। एक कुर्ता बन के टंग गया, एक जूती बन के ड्योढ़ी पे बैठ गई। थोड़ी देर में उसका मियां आया। मियां ने देखा कुर्ता, चप्पल, ये मेरी गैर मौजूदगी में यहां कौन आया था। उसने फौरन बीवी को उठाया और कहा, बीवी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में यहां कौन आया था। बीवी ने जमाई ली, कौन आया था। उसने कहा, मुझे क्या पता, तुम बताओ, ये कुर्ता किसका है, ये चप्पल किसकी है। बीवी ने देखा कुर्ता, चप्पल, उसने कहा पता नहीं, मैं तो सो रही थी। अच्छा
अरे मैं घर पे नहीं था, तुम यहाँ थी, तो तुम्हें पता होगा कि मुझे पता होगा। बीवी ने कहा, जी मेरी जूती जाने किसका कुर्ता किसका चप्पल, मैं तो आराम से सो रही थी, आप ही ने आके यहाँ पे सब बवाल मचाया है। अब साहब मियाँ बीवी में वो लड़ाई, वो झगड़ा, अरे साहब देखने लायक था। पूरा मोहल्ला जो है सर पे उठा लिया, आसमान सर पे उठा लिया। इतना हंगामा बरपा हुआ कि आखिर में मियाँ दिक हो गया। उसने कंबल उठाया और कहा, आज रात में घर में नहीं रहूंगा। फौरन घर से बाहर निकल गया। बीवी ने जमाई ली, दिया बुझाया और सो गई। इत्तेफाक से उस गांव में जब सारे दिए जल जाते थे, बुझ जाते थे, तो उन दियों की जो लवे होती थी, फ्लेम्स, वो सब बुझने के बाद उड़ती हुई गांव के मंदिर में इकट्ठा होती थी और आपस में बैठ के गप्पाबाजी किया करती थी। अब जब बीवी ने यहाँ का दिया बुझाया तो इस घर की लव उड़ती हुई यूं गांव के मंदिर के आंगन में पहुंची। वहां बाकी घरों की लवे जो हैं वो पहुंच चुकी थी। उन्होंने इसको देखा और कहा, सखी क्या बात हुई, आज आने में इतनी देर क्यों हुई? उसने कहा, क्या बताऊं सखी, वही मियाँ बीवी का झगड़ा। उस बीवी के मन में एक राम कथा थी, एक राम भजन थी। ना वो किसी को राम कथा सुनाए, ना वो किसी को राम भजन सुनाए। दोनों का उसके मन में बैठे बैठे दम घुट रहा था। इत्तेफाक से आज मुंह खोल के सो गई। दोनों ने सोचा कि मौका अच्छा है बाहर निकलने का। रेंगते हुए बाहर निकले। एक कुर्ता बन के बैठ गया, एक चप्पल बन के बैठ गई। थोड़ी देर में उसका मियाँ आया। तुम्हें तो पता ही है मियाँ कितने शक्की हुआ करते हैं। उसने देखा कुर्ता चप्पल, फौरन बीवी को उसने उठाया और कहा, बीवी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आया था? बस जी, मियाँ और बीवी के अंदर वो झगड़ा, वो जूतम पजैद। आखिर में मियाँ दिक आ गया। उसने कंबल उठाया, उसने कहा, मैं आज घर में नहीं रहूंगा। बीवी ने दिया बुझाया, तब कहीं मुझे मोहलत मिली, तब मैं यहाँ तुम्हारे पास आई। हाँ, इत्तेफाक से मियाँ उसी मंदिर के आंगन में कंबल लेके सो रहा था। उसने जो ये सारी रुदात सुनी, सारी दास्तान सुनी, तो दिल में कहा, अरे ये तो मेरे घर की कहानी है। खाम मैं अपनी बीवी के ऊपर शक कर रहा था। फौरन कंबल लेके दौड़ता हुआ गया, घर पहुंचा, बीवी को उठाया, कहा, बीवी बीवी अरे सच सच बताओ, वो कौन सी राम कथा है, वो कौन सा राम भजन है जो तुम्हारे मन में है, जो तुमने मुझे आज तक ना सुनाया? बीवी ने आंख खोली, अगड़ाई ली और कहा, कैसी राम कथा, कौन सा राम भजन? इसीलिए आपसे कहा जाता है, अगर आपके मन में कोई राम कथा है या कोई राम भजन है तो फौरन उसे सुनाइए, वरना आपका मुंह कहीं खुला रह गया तो आपके मुंह से राम कथा राम भजन दोनों उड़ के निकल जाएंगे और आप भूल जाएंगे कि आपको कोई राम कथा या राम भजन याद भी थी। तो ये है दुनिया की सबसे पहली कहानी। अब मैं आपको जाते जाते सुनाता हूं दुनिया की सबसे आखिरी कहानी। ये दुनिया की सबसे आखिरी कहानी है। इस कहानी के बाद कोई कहानी नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है इस कहानी के बाद कोई कहानी रची गई है, गलत कह रहा है। बाहर निकालिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे यकीन कीजिए। तो दुनिया की सबसे आखिरी कहानी यह है कि बनारस नगरी में एक राजा रहता था जिसको राम कथा सुनने का बड़ा शौक था। तो भैया राम कथा तो उतनी ही जितनी रामायण में। रामायण खत्म हो जाए, राजा अफसुर्दा हो जाए, कुप भवन में जाके बैठ जाए। एक दिन मंत्री का दिमाग चल गया। उसने कहा, हुजूर मेरे ख्याल से आप घोषणा कर दीजिए, जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशरफी इनाम मिलेगी। बस साहब, घोषणा हो गई, मुनादी पिट गई, जगह जगह ढोल पिटता, नगाड़ा बजता और राज्य में हर जगह ये ऐलान होता गया कि भैया जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसको 1 लाख सोने की अशरफी इनाम मिलेगी। अब जब ये ऐलान हुआ, जब ये झिंझोरा पिट गया, जब ये मुनादी हो गई, तो यहां से वहां से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से उत्तर से, पश्चिम से दक्षिण से, हर तरफ से राम कथावाचक राजा के दरबार में पहुंचने लगे। भैया कोई कैसे ही सुना दे, खड़ा होके, लेट के, उल्टा होके, टंग के, रो के, गा के, सो के, लेकिन राम कथा खत्म हो जाए, जूते मार के उनको बाहर निकाल दिया जाए, राजा फिर का फिर अफसुर्दा हो जाए। अब उसी बनारस में एक ठग रहता था। उसने अपने जमूरे को बुलाया और कहा, जमूरे पैसा कमाने का ये बड़ा अच्छा मौका है। फौरन उसने अपने जमूरे को साथ लिया, राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज ऐसी राम कथा लेके आया हूं, आप खत्म हो जाएंगे, राज्य खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, दरबार खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। राजा के कान खड़े हुए। उन्होंने कहा, है ये कौन सी राम कथा लेके आया है?
भैया यहाँ तो इधर से उधर से, वहां से, यहाँ से, दक्षिण से बाएं से, पूरब से उत्तर से दक्षिण से, हर तरफ से राम कथावाचक आए, कोई कैसे हो कहानी सुनाए, खड़ा होके, लेट के, उल्टा होके, रो के, गा के, टंग के, लेकिन कहानी खत्म हो जाए और सबको जूते मार के बाहर निकाल दी जाए। और ये कह रहा है कि महाराज ऐसी राम कथा लेकर आया हूं, आप खत्म हो जाए, दरबार खत्म हो जाए, नगर खत्म हो जाए, राज्य खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। है? सुनाओ भाई, सुनाओ सुनाओ ऐसी विचित्र राम कथा। उसने कहा महाराज, कहानी सुनाने से पहले एक शर्त है। कहानी के शुरू में जो मैं बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान लगा के सुनना होगा, बीच कहानी में कोई टोकम टाकी नहीं होगी। महाराज ने कहा ठीक। अब महाराज और कथाकार के बीच में एक मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो भी वो कहानी से पहले कह रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनना है, बीच में कोई टोकम टाकी नहीं होगी। अब देखिए, आप भी ये कहानी सुन रहे हैं तो आपके साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, तो जो कहा जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बीच में टोकम टाकी ना कीजिएगा कि ये कहानी में कैसे हो रहा है। ठीक, तैयार है? हो गई अंडरस्टैंडिंग, मुआहदा हो गया। अब जब सब मुआहदा हो गया तो उस कथावाचक ने अपनी राम कथा शुरू करी कि महाराज, एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही थी और कितनी चिड़ियां जा रही थी, और उस पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे हुए थे जिसके अंदर गेहूं रखा हुआ था, और उसके बगल में एक तालाब था कि एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करती हुई उड़ गई। महाराज, दूसरी चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, तीसरी चिड़िया आई, आपके कक्ष आई, महारानी की पसंदीदा चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, चौथी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, दुश्मन है तो क्या हुआ, चिड़िया तो चिड़िया ही है, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, पांचवी चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, छठी चिड़िया आई, नायाब चिड़िया आई, एक्सटिंक्ट चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, सातवीं चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज, आठवीं चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। अब यही चल रहा है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, फुर 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 फुर, सारा खेल यही लगा हुआ है। जब 10-15 हजार चिड़िया उड़ गई, कितनी? 10-15 हजार। हाँ, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। जब 10-15 हजार चिड़िया उड़ गई, मंत्री का दिमाग चला। उसने कहा महाराज, इससे पूछिए इसकी कहानी में राम कथा कहाँ है? ये तो कह रहा था कि इसकी कहानी में राम कथा है, पर इसके अंदर खाली चिड़िया फुर फुर कर रही है। महाराज ने कहा हाँ, ये बात तो सही है। कहा थांबा थांबा, भाई एक मिनट, ये बताओ कि तुम्हारी कहानी में राम कथा कहाँ है? इसमें तो खाली चिड़िया फुर फुर कर रही है। कथावाचक ने कहा महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे ये बात कहानी के शुरू में कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी। और महाराज, अयोध्या नगरी में तो महाराज श्री राम ही बसते हैं ना, तो 13,336 चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। अब यही सिलसिला चल रहा है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है। भाई साहब, हर तरफ चिड़िया चिड़िया चिड़िया। दरबारी जब अब एक दूसरे को देखते तो उनको इंसान नहीं नजर आते, किसी को कोई तोता लगता, तो किसी को कोई मैना लगता, तो किसी को कोई गौरैया लगता, तो किसी को कोई, अरे साहब क्या बताऊं। महाराज जब रसोई की तरफ जाते तो वहां रसोइये महाराज जो बैठे हुए खाना पका रहे थे, उनको वो एक मुर्गे की तरह दिखाई देते। अब जब महाराज अपने हरम में जाते तो उनको महारानी की जगह हंस और मोर दिखाई देता। हर तरफ चिड़िया 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 चिड़िया, यही हाल। जब 70-80 हजार चिड़िया उड़ चुकी, कितनी? 70-80 हजार। तो मंत्री का दिमाग फिर चला। उसने कहा महाराज, इससे पूछिए इसकी कहानी में चिड़िया कितनी है। महाराज ने कहा हाँ, अगर ये पता चल जाए कि इसकी कहानी में चिड़िया कितनी है तो समझ में आ जाएगा कि ये कहानी कहां खत्म होने वाली है। कहा एक मिनट, थांब थांब, भाई ये बताओ, ये तुम्हारी जो ये राम कथा है, चलो हमने मान लिया कि ये राम कथा है, ये बताओ कि इस राम कथा के अंदर चिड़िया कितनी है। उसने कहा महाराज,
आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहानी के शुरू में यह बात कही थी, एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी, और उस पेड़ के नीचे 20 पीपल बैठे हुए थे। और महाराज, कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं ये तो श्री राम ही बता सकते हैं ना। तो माना 80,336 चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुका तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। बस अब यही खेल चल गया, चिड़िया आ रही, चिड़िया जा रही, फुर 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 फुर। अब तो यह हाल हो गया कि पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजधानी में चिड़िया उड़ रही है, पर चिड़िया किसी को दिखाई नहीं देती है। बस चिड़िया 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 का जिक्र है, चिड़िया दिखती नहीं है। जब 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, कितनी 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, मंत्री का दिमाग फिर चला। उसने कहा, महाराज इससे पूछिए वो पेड़ के नीचे जो पीपे रखे हैं जिसमें गेहूं रखा हुआ है वो कितने हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अरे भाई, चिड़िया तो कितनी आ रही है कितनी जा रही है पता नहीं चल रहा, लेकिन पीपे उसकी तो गिनती हो रखी है। वो समझ में आ जाए कितने पीपे खाली हुए हैं तो समझ में आ जाएगा कहानी कहां खत्म हो रही है। कहा, भाई थामा 1 मिनट, ये बताओ, ये जो तुम्हारी राम कथा है जिसमें कितनी भी चिड़िया आ रही हैं और कितनी भी चिड़ियां जा रही हैं, उसमें वो पेड़ के नीचे गेहूं के पीपे कितने रखे हुए हैं। महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे ये बात कहानी के शुरू में कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही हैं और कितनी चिड़िया जा रही हैं, और उसके नीचे 20 पीपे रखे हैं जिसमें गेहूं रखा हुआ है। और महाराज, अभी तो पहला पीपा 1/4 खाली हुआ है। अब जो महाराज ने ये सुना तो कहा, भैया इसे फौरन 1 लाख सोने की अशर्फी इनाम दे दो। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो यहां खत्म होती है ये छोटी सी दास्तान, ये किस्सेबाजी की महफिल जो द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के फंड रेजर के लिए है। आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो के नीचे जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, जाइए और दरिया दिली के साथ इस फ्री लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि वो बच्चे जो कहानियों और किताब के साथ बड़े होंगे इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दानिश हुसैन। I hope wherever you are giving a huge round of applause for one of the finest storytellers of our time. Now, हमने वैसे सारी बातें कर ली है और मैंने मतलब चपड़ चपड़ करके आपसे I've talked your ears off so far. But nothing will be more effective to hear about the library project, the community library project, and what it does if we don't hear from the librarian's mouth herself. So, you know what? Put your hands together for one of the stalwart librarians of the community library project, Bhavna. Thank you, Aditi. Thank you. You are so good. Please consider me as your fan. Oh my God. भावना जी, मेरी माँ को बोल दो प्लीज. She keeps wondering, she's like, तू करती क्या रहती है अपने टाइम के साथ? कुत्ते को वॉक के लिए लेके जा. But I will let you Thank take you, center thank stage, you. Bhavna. Tell us. It is such a joy to have an opportunity to witness how our tribe together made the Free Library Fundraising Festival 2020 possible, even in a difficult time like COVID-19 pandemic. And on this occasion, it wouldn't be imprecise if I read a few lines written by a very famous Urdu poet and lyricist, मजरू सुल्तानपुरी जी. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. Sometimes it is not just about changing something. I think it is about undoing as well. Similarly, it is important to believe in something. However, just believing in something is certainly not enough. So together we keep working on it to translate into practice by using the praxis in the process of practice. I know we can get there. I think we are getting there. We'll reach there where each one of us has an equitable, inclusive, democratic, and thoughtful society where we have the possibility of dialogue, deep engagement, debate, expressing ourselves, freedom to introspect, freedom to dissent,
in the state and society as well. So this is the vision, the practice and the praxis of the Community Library Project. All these together have been helping in shaping ideas, thinking, and building perspective around a free library, space and free library movement. It is also shaping each one of us, especially the librarian, who are thinking and actualizing the vision of a free and inclusive library space for every single member of our society. They're not just playing a traditional role of librarian in the library. I think the role of members in becoming a reader and thinker have been taken up by them as well. So as I promised to my tribe, I will keep it short and leave you all with what years back Dr. Baba Saheb Ambedkar said, that my final word of advice to you is to educate, agitate, and organize, and have faith in yourself. With justice on our side, I do not see how we can lose our battle. The battle to me is a matter of joy. The battle is in fullest sense spiritual. There is nothing material and social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality. Thank you. Please keep reading and thinking and support the free library movement. Support the Community Library Project. Thank you. Over to you, Aditi. Thank you. That was incredibly moving. And on this very moving note, as Bhavna said, educate, agitate, and organize. And our next performer for tonight has done these very things through his music. He agitates and organizes and educates via the strings of his guitar. He brings revolution via his voice. And he is today one of the most recognizable faces in Indian music. So please put your hands together for the wonderful Rahul Ram. Who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Children wealth, their parents' health will slowly go by, and keep them all your dreams. Once that big, what you're known by. Don't you ever ask them why? If only you would try. Did you look at them and sigh? And you know they love you. And you up the tender years don't have the fears that your elders grew by. So please help them with your youth. They seek the truth before they can die, and keep them all your dreams. The ones they pick are the ones you're known by. Don't you ever ask them why? If it's only you would cry, just look at them and sigh. I know they love you, and you know they love you, and you know
they love you. Thank you. I'm Rahul Ram from Indian Ocean. And I've been asked to say something for the fundraiser of the Community Library Project. And you guys have already been hearing a lot about what they've done and the difficult times they're facing under COVID. And so I don't need to tell you more of that. I'm sure by now you know what awesome work they're doing and why you should help them. You know, at these times, if we don't help each other, nobody's going to help us. And libraries are something I have loved ever since I was a kid. You know, I was lucky to grow up in a house that was full of books and books and books. I was lucky to be in a school that had a huge, well-stocked library where kids were allowed to sit and study and do whatever they wanted. In fact, I did my entire PhD almost sitting in a library. And the wonderful serendipity that would come from being in that library, because you know, you'd read an article and then the references would set you off to go and search and hunt for something else. Then you read that, and while flipping through the pages, something new would come to your mind. And this is what libraries do. They allow your mind to wander and to learn and to indulge in serendipity and get all the gains that you can from reading other people's thoughts and works. And oh man, I just love libraries. But before libraries, a song that I learned when I was in the Narmada Valley as part of the Narmada Bachao Andolan. A song that was sung by a bunch of people from Chhattisgarh and that I later on found out was written by a man called Gorakh Pandey. A revolutionary song. And it became part of Indian Ocean's oeuvre, so to speak. And here we go. This song says that if people come together, they can change the world. All right. So here we go. I always have a problem getting the first note. Hillale jakjor, ara hillale jakjor, dunya hillale jakjor, hillale jakjor, dunya hillale jakjor, hillale jakjor, dunya. जनता की चले पलटनिया हिल्ले झकझोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर, हिल्ले झकझोर दुनिया. गए राजवाड़े ढह महाराजवा, गए राजवाड़े ढह महाराजवा, रानी करी धूल में लुटानिया. हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर, हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर, हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर, हिल्ले झकझोर दुनिया, हिल्ले झकझोर, हिल्ले झकझोर दुनिया. Illele esiare, illele Amerikava, illele esiare, illele Amerikava, ille puri jagat ki janata. Molo bhai, illele झकझोर दुनिया, illele झकझोर, illele झकझोर दुनिया, illele झकझोर दुनिया, illele झकझोर, illele झकझोर दुनिया, illele झकझोर,
हिल्लेले झकझोर दुनिया हिल्लेले झकझोर हिल्लेले झकझोर दुनिया. One of the places run by the Community Library Project. I have a cousin who used to work with them, and I visited and I saw the kids and I saw the books, and I was so impressed with what was going on there. And ye Gana, the reason I've sung this song is because, when you learn, you get a better handle on the world. And what I found in my childhood, or I won't even say childhood, later on, is that we used to read and we used to talk to each other about what we read. And we used to exchange ideas, and those ideas would make us feel much more. You see, because when you learn from a teacher, you can't say, no, but I think you're wrong. Whereas when you're discussing the same subject with friends, you can say these kind of things. And you can argue, and you can have fights and arguments, and it really helps to sort things out in one's head, to have discussed it with your peers, and to get a better idea of what's going on in the world around you. All right? And now, song number 3, more easily. You see, because I'm up in the hills in Manali. COVID time, lockdown, no concerts. Why should I stay in Delhi? I have the liberty to do so, and I'm enjoying it. I tell you totally. So, the song I want to sing for you is a song that has hope in India. I know that in these days it seems there's darkness all around, but we have to fight and we have to struggle. And I'm sure we'll come out of it, because India is a fantastic place. धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से भोला गहरा अंदर. इंडिया सर ये चीज धुरंधर, जेब दलिद्दर दिल है समंदर. There's a song called Des Mera Rangrezi Babu from Indian Ocean. अरे देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाटिया घटता जादू. देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाटिया घटता जादू. धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से भोला गहरा अंदर. धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से भोला गहरा अंदर. इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर, जेब दलिद्दर दिल है समंदर. देश मेरा रंगरेज बाबू. दीवाना हरा समंदर कभी चंदर, डूब के जान तू कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना. देश मेरा रंगरेज बाबू. डूब के जान तू कितना पानी. That's what a library allows you to do. डूब जाओ, घुस जाओ किताबों में, अलग अलग दुनियाओं में. And I really like to finish this off by saying, please, please, please contribute to the Community Library Project. They're doing fantastic work. Come on, go for it. I know these are tough times for everybody, but a little bit from you can make a lot of difference to a lot of children. So go for it. Thank you and good night. And that brings us to the end of the concert. I hope you had a good time. If you did, now's your last chance to donate. Now's your last chance to
jump onto our, not the last chance actually, this is your chance to actually tell us in the comments whether you had a good time or not. Our donation links, our auction and donation links are up for if you're viewing on Facebook, and down if you're viewing on YouTube. And please, I know that everybody said donate, donate, donate. So I'm going to repeat one last time. Go ahead, give of your heart freely. Realize that every rupee you donate is you forwarding your legacy, is you forwarding a legacy of your time and your people. And now I must go because I just found another large lump of hair under my cupboard. So wo jaake jhadu karna padega. But thank you so much for tuning in. My name has been Aditi Mittal. Have a good night and keep reading. Keep thinking.